Assalamu alaikum. I'm Bakhtavar and I'm taking your English for grade 4. Today we are going to read the unit number 4, Anansi and 5. Here I have written some nouns from the chapter, some adjectives from the chapter, and then some verbs from the chapter. While going through the reading, I'll letting you know what are the verbs and what are the nouns and what are the adjectives. And after doing the reading, it's your duty, it's your homework that you have to underline those words and write N on the nouns, A on the adjectives, and V on the verbs. Alright, so now get started with the reading. Unit number 4, Anansi and 5, page number 34. Words to know: charming, very pleasant or attractive; delicacies, small, tasty or rare fruits; furious, very angry; glum, sad; scowl, an angry expression; scurrying, moving hurriedly; trickster, a mischievous character, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है. Once upon a time, long ago, there lived a creature called Anansi. एक बार का जिक्र है कि बहुत पहले यहाँ पे जहाँ पे जो इन्होंने लोकेशन बताई हुई है, जो इन्होंने प्लॉटिंग बताई है, वहाँ पे एक कैरेक्टर रहता था जिसका नाम था अनांसी. Sometimes Anansi was a spider. कभी कभी अनांसी स्पाइडर बन जाता था. Sometimes he was a man. कभी वो मैन बन जाता था. And other times he was a strange mix of two. कभी कभी वो आदमी भी बन जाता था और मकड़ी भी बन जाता था. Anansi was a trickster. अनांसी लोगों को बेवकूफ़ बनाता था. And he was having a difficult time. He had no money to buy food for his family. ये वो मुश्किल वक्त से गुज़र रहा था. उसने अपने घर वालों को, फैमिली को खाना खिलाना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे. As he walked around the village early one morning, he had a scowl on his face and a growl in his stomach. एक दफ़ा जब वो सुबह सुबह एक वॉक पे निकला, गांव में फिर रहा था, तो उसके फेस पे गुस्सा था और उसके पेट में दर्द थी. क्योंकि उसके पेट से आवाज़ें आ रही थी. किस लिए? क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था. Passing by a neighbor's house, एक हमसाये के घर से गुजरते हुए, Anansi heard something that pleased him. अनांसी ने कुछ सुना जिसने उसको खुश किया. Pleased, it is a verb, please. Heard, it is a verb. Neighbor's house, it is a noun. By, it is a verb, right? Trickster, that is an adjective. The neighbor was an old witch. Old is an adjective क्योंकि ये quality बता रहा है. जो neighbor थी वो एक बूढ़ी चुड़ैल थी. She was an angry and unpleasant witch. Angry, unpleasant, ये दोनों adjectives हैं क्योंकि ये उस चुड़ैल की क्वालिटी या डिसक्वालिटी बता रहे हैं कि वो एंग्री, गुस्से वाली भी थी, और वो अनप्लेजेंट भी थी. Who became furious. Furious ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एक इमोशनल फेज़ है. अब इसके बारे में वो क्या बताता है कि वो जो चुड़ैल थी वो अचानक गुस्से में आ जाती थी. Whenever anyone said her name, जब कोई उसका नाम बुलाता था, जो कि था 5, she hated her name, उसको अपने नाम से नफरत थी. All through her life people had laughed or looked surprised when they heard what her name was. Can you guess what her name was? It was 5. अब उसको अपने नाम से बहुत नफरत थी क्योंकि बचपन से लेकर अब तक जब भी कोई उसका नाम सुनता था तो वो क्या कहता था कि जी इसका नाम फ़नी है, उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए उसको नहीं पसंद था कोई उसका नाम ले. अनांसी पीक्ड. अनांसी ने थोड़ा सा देखा छुप के. Through a gap in the witch's fence, she was stirring her big cooking pot. वो अपने कुकिंग पॉट में कुछ मिक्स कर रही थी. एंड मटरिंग एंड मम्बलिंग अ स्पेल, और साथ साथ कुछ बोल रही थी, बुड़बुड़ा रही थी. द स्मोक एंड स्पार्क्स वर ब्लू. उसके अंदर से जो धुएँ निकल रहे थे और जो स्पार्क्स आग के निकल रहे थे वो ब्लू थे और ग्रीन थे. ये भी दोनों एडजेक्टिव्स हैं. सो अनांसी न्यू शी वॉज कुकिंग सम बिग मैजिक. अनांसी को पता था, मैजिक इज़ अ नाउन, अनांसी को पता था कि ये कुछ इसमें पका रही है, कोई मैजिक है. सडनली, एकदम से, शी स्नैच्ड up her staff and started to pound it on the ground. As she walked around the pot, Anansi listened carefully to what she said. I curse anyone who says the word 5 to disappear forever. वो क्या करती है, वो पॉट में जब बना लेती है तो उस पॉट को ग्राउंड पे रख देती है और फिर वो क्या करती है, अनांसी कान लगा के सुनता है. वो कहती है कि मैं उसको कर्स करती हूँ, हर उस बंदे को जो मेरा नाम लेगा, 5 बोलेगा, अगर वो 5 बोलेगा तो वो डिसअपेयर हो जाएगा. अनांसी रब्ड हिज हैंड्स. अनांसी को एक
बहाना मिल गया कि अब मैं इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना सकूँगा। He rubbed his hands together and jumped around on his 8 hairy legs, और वो इतना खुश हुआ कि उसने अपनी टांगों पे छलांगे मारना शुरू कर दी। This could make me some money and get some food on the table for my family. वो कहता है कि अब मैं इससे कुछ पैसे बना सकूँगा और अपनी फैमिली के लिए खाना लेके जा सकूँगा। He smiled widely. वो एक क्या कहते हैं, he gave a negative expression of smiling, और उसके बाद उसने उसके जो जब उसने स्माइल किया तो उसके जो टीथ थे वो चमक रहे थे। Anansi rushed to the path that ran along to the river bank between the village and the marketplace. अब जो अनांसी कहता है कि जो हमारा उसने उस तरह का रास्ता चूज़ किया जहाँ से उसको पता था लोगों का आना जाना बहुत लगा रहेगा। उसने विलेज और मार्केट के बीच का रास्ता चूज़ किया, वो वहाँ बैठ गया। Soon everyone who was going to the market, बाद में जो लोग मार्केट जा रहे थे would walk past, वो वहाँ से गुजरेंगे। They would be on their way to buy the delicious yams, beets, pulses and grains that would be piled high in the market. वो कहते हैं कि कुछ लोग यहाँ से चीज़ें लेने जा रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ से चीज़ें बेचने जा रहे होंगे, और वो सारी खाने पीने की चीज़ें होंगी जिनमें यम्स, बीट्स, दालें, ग्रेन्स, बहुत सारी चीज़ें होंगी। Anansi set to work and piled up 5 mounds of earth near the path. अनांसी ने क्या किया, एक रास्ते में 5 जगहों पे जो है उसने क्या किया, पाइल्स रख दिए, कुछ चीज़ों के उसने बंडल्स बना के रख दिए। They looked just like he had planted 5 yams. ऐसे लग रहा था उनको देख के जैसे उसने 5 yams उगाए हों। Then he sat down and waited. फिर वो बैठी और उसने इंतज़ार किया। First to come by was Little Mrs. Rabbit. सबसे पहले जो आई वो Mrs. Rabbit थी। She carried a basket full of sweet potato pieces and walked slowly because it was heavy. सबसे पहले उसने क्या किया, स्वीट पोटैटो लेके वो जा रही थी। स्वीट पोटैटोज़ क्या होते हैं, आलू की तरह के ये होते, और इनको थोड़े से पानी में बॉईल किया जाता है। वो उसको लेके जा रही थी, और रास्ते में अनांसी था जो उसको ट्रेक करने के लिए वहाँ पे पहले ही बैठा हुआ था, और वो बड़े आराम से चल रही थी क्योंकि उनकी बकेट हैवी थी। अनांसी स्टेप फॉरवर्ड एंड स्माइल. अनांसी आगे आया और हंसने लगा, उसने स्माइल पास की. दैट लुक्स लाइक अ बिग वेट, प्लीज़ रेस्ट अ वाइल एंड हेल्प मी. वो मिसेस रैबिट को कहते हैं अनांसी कि मुझे लगता है आपने काफ़ी वज़न उठाया, आप थोड़ी देर बैठ जाएं और मेरी थोड़ी सी मदद करते हैं. आई डोंट नो हाउ टू काउंट, मुझे नहीं पता कि काउंट कैसे करते हैं. सो आई कैन नॉट टेल हाउ मैनी यम्स आई हैव प्लांटेड, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि मैंने कितने यम्स उगाए हैं. मिसेस रैबिट वॉज काइंड, मिसेस रैबिट बहुत रहमदिल थी. एंड सो शी स्टॉप, तो वो रुकी. शी पुट डाउन हर बास्केट, उन्होंने अपनी बास्केट नीचे रखी. एंड होप्ड अलॉन्ग द रो, और उसके बाद जैसे जैसे उसकी जो रो लगी हुई थी यम्स की, उनके साथ साथ चलना शुरू हो गई. काउंटिंग 1 2 3 4 5, उन्होंने काउंट किया 5 तक. इन अ फ्लैश एंड अ बैंग मिसेस रैबिट डिसअपीयर्ड, एकदम से मिसेस रैबिट जो थी वो डिसअपीयर हो गई. अनांसी गोबल्ड डाउन इन द होल बास्केट, अनांसी जो था उसने क्या किया, उसने सारी की सारी बास्केट खा ली. और स्वीट पोटैटोज इन सेकंड्स, कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही लिक्ड हिज लिप्स एंड सैट डाउन अगेन टू वेट. फिर उसने दूसरी पार्टी के आने का इंतज़ार करना शुरू कर दिया. नॉट लॉन्ग आफ्टर, अभी देर नहीं हुई थी, ही हर्ड लिटिल फुट स्टेप्स ऑन द पाथ, उसने रास्ते पे छोटे छोटे कदमों की आवाज़ सुनी. एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा. इट वॉज मिस्टर डक, वो मिस्टर डक थे. ही वॉक्ड अलॉन्ग विद हिज चेस्ट हेल्ड हाई, वो सीना तान के चल रहे थे. एंड हिज फीट मेड अ स्लिप स्लैप साउंड ऑन द पाथ, और उसके पाँवों की आवाज़ें आ रही थीं. ही हैड अ बिग बैग विद हिज लंच इन इट बाय हिज साइड, उसकी साइड पे एक बैग था जिसके अंदर लंच था. मिस्टर डक स्टॉप्ड व्हेन ही सॉ अनांसी एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज. मिस्टर डक अनांसी के पास रुके और पूछा कि अनांसी तुम कैसे हो. अनांसी पुट ऑन अ ग्लम एक्सप्रेशन, अनांसी ने गुस्से वाला एक्सप्रेशन दिया. मिस्टर डक, आई हैव नो आइडिया हाउ टू काउंट माई यम प्लांट्स. मिस्टर डक, मुझे नहीं पता कि अपने यम प्लांट्स कैसे काउंट करने हैं. कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. मिस्टर डक बोब्ड, उन्होंने अपना सर हिलाया. हिज हेड एंड पफ्ड आउट हिज चेस्ट इवन फर्दर, और फ़ख्र से उन्होंने और अपना सीना तान के खड़े हो गए. वेल अनांसी, ही सेड, उन्होंने कहा, इट इज़ क्वाइट सिंपल, ये बहुत आसान है. स्टार्ट विद 1, देन इट्स 2 3 4 एंड 5. आप 1 से काउंट करो और उसके बाद ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5. मिस्टर डक डिसअपीयर, मिस्टर डक भी फौरी तौर पे गायब हो गए. इंस्टेंटली, फ़ौरन. अनांसी एट अप, एट वर्ब है, एट अप द लंच, लंच नाउन है. अनांसी ने वो लंच खा लिया. नाउ, अब. आई नो यू विल बी वंडरिंग अबाउट अनांसीज फैमिली, डिड ही थिंक अबाउट दैम.
अब आप ये सोच रहे होंगे, ये रीडर से मुखातिब हैं कि अनांसी ने तो सब कुछ खुद खा लिया, उसने अपनी फैमिली के लिए तो कुछ भी नहीं रखा। डिड ही सेव एनी फूड फॉर देम, क्या उसने अपने उनके फैमिली के लिए कोई खाना रखा? नो ही डिडंट, ही एट एवरीथिंग विदाउट अ थॉट अबाउट एनी ऑफ दैम, उसने उनकी सोच के बगैर ही सब कुछ खा लिया। नेक्स्ट टू कम अलॉन्ग, उसके बाद जो जिसकी बारी थी, ऑन हर वे टू द मार्केट टू बाय सम टेस्टी ट्वीट्स, वो कुछ टेस्टी ट्वीट्स लेने के लिए मार्केट जा रहा था, वॉज मिस फ्रॉग, शी डिडंट स्टॉप व्हेन अनांसी कॉल्ड हर, मिस फ्रॉग जब मार्केट जा रही थी तो अनांसी ने उनको भी आवाज़ दी लेकिन वो नहीं रुकी। हे प्लीज़ हेल्प मी काउंट माई प्लांट्स, वो कहते हैं कि हे प्लीज़ इधर आए, प्लीज़ मेरे प्लांट्स को काउंट कर दें। नेक्स्ट शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर एंड शी होप्ड अवे, उन्होंने उसको ये जवाब दिया और वो चली गई। इट डिड नॉट बॉदर अनांसी टू मच, ये अनांसी को इतना बुरा नहीं लगा, बिकॉज ही न्यू देयर वुड बी प्लेंटी मोर चांसेस, क्योंकि उसको पता था उसके पास और भी बहुत मौके हैं फॉर हिम टू ट्राई हिज ट्रिक आउट, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के। ही इमेजिन व्हाट डिलिशियस फूड्स ही वुड फाइंड, वो सोच रहा था कि कैसे मज़े मज़े के खाने मुझे मिलेंगे। ही डिड नॉट इमेजिन टेकिंग एनी टू हिज हंग्री चिल्ड्रेन, उसने नहीं सोचा कि उसमें से कोई फूड वो अपने बच्चों के लिए ले जाए। ही वॉज गोइंग टू ईट एज मच एज ही कुड फिट इन हिज स्टमक, वो इतना खाना चाह रहा था कि जितना वो अपने मैदे के अंदर रख सके। एंड देन कम बैक एंड ट्राई द ट्रिक अगेन ऑन अनदर डे, फिर वो सोचता था कि दोबारा आऊँगा और दोबारा से यही काम करूँगा। A screaming sound pulled Anansi out of his daydream, एक साउंड आई उसको, अजीब सी आवाज़ जिसने उसको एकदम से उठा दिया अपने ख्वाबों की दुनिया से। It was Mrs. Shrew, ये मिसेस श्रीव थी। On her tiny back she had a huge load of freshly made pies, उन्होंने अपनी कमर पे एक बास्केट उठाई हुई थी जिसके अंदर पाइज बनाए थे उन्होंने खुद। That she was hoping to sell, जो वो बेचना चाह रही थी मार्केट में। The load was 3 times her size, वो जो लोड था वो उनके अपने साइज से वजूद से 3 गुना ज़्यादा था। हर फेस वॉज रेड फ्रॉम द एफर्ट शी वॉज मेकिंग, इतना वज़न उठा के उनका जो फेस था वो रेड हुआ था। ओ लेडी श्रीव, हाउ नाइस टू सी यू, आपको देख के कितना अच्छा लग रहा है। सिट अ वाइल एंड रेस्ट, बैठ जाएं और आराम करें। आई नीड योर हेल्प टू काउंट माई प्लांट्स एंड यू कैन शेयर योर विजडम, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे प्लांट काउंट करें और मेरे साथ अपनी कुछ विजडम, अपनी कुछ अक्लमंदाना बातें शेयर करें। Anansi grinned and showed all his sharp teeth. Anansi, obviously he was on an aim, he was trying to do something else, लेकिन ये वो शो नहीं करना चाहता था बट उसके फेस से जाहिर हो रहा था। He was trying hard to be charming because he really wanted to eat all the pies. वो चाह रहा था कि मैं अच्छा और इनोसेंट लगूं ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ और सारे पाइस खा लूँ। Mrs. Shrew was not a fool. Mrs. Shrew बेवकूफ़ नहीं थी। She could see Anansi's eyes glisten as he looked at the pies. वो उनको पता था कि अनांसी जब उनकी पाइस की तरफ देखता था तो उसकी आंखों में लालच उनको साफ नज़र आता था। वेल अनांसी यू आर काइंड, अनांसी तुम रहम दिल हो, बहुत अच्छे हो। आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूँ। शी पुट डाउन हर लोड, उन्होंने अपना वज़न जो कैरी किया हुआ था उसको नीचे रखा। हाउ कैन आई हेल्प, आप बताओ मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। आई कैन नॉट काउंट, मैं काउंट नहीं कर सकता। ही लाइड, उसने झूठ बोला। कैन यू काउंट माई यम माउस फॉर मी, क्या आप यम्स मेरे लिए काउंट कर देंगी। मिसेस श्रू स्माइल, मिसेस श्रू ने स्माइल की। शी वॉकड टू द नियरेस्ट माउंट, उन्होंने सबसे करीबी वाले माउंट पौधे की तरफ गई। शी एंड स्टूड ऑन इट, और उसके ऊपर खड़ी हुई। शी पॉइंटेड टू द माउंट दैट वाज फर्देस्ट अवे फ्रॉम हर, 1 2 3 4 एंड दिस वन। एक पे तो वो खुद से खड़ी हो गई, उसके बाद 4 रह गए। अब वो उस पर एक पे जिस पे खड़ी थी उस पर खड़े होकर कहती है, जैसे आप देखें पिक्चर में, वो कहती है कि वो देखो 1 2 3 4 और ये चौथे के बाद जिस पे मैं खड़ी हूँ। शी सेड क्लियरली, उन्होंने साफ तरीके से ये बोला। अनांसी फ्रॉन, अनांसी कहता नहीं। डू इट अगेन, से ऑल द नंबर्स, अनांसी ने कहा नहीं आप सारे नंबर बोलें, 1 2 3 4, इससे आगे भी बोलें नंबर कौन सा आता है। उन्होंने कहा 1 2 3 4 एंड दिस वन दैट आई एम सिटिंग ऑन, वो कहती है 1 2 3 4 और ये जिसके ऊपर मैं बैठी हूँ। मिसेस श्रू स्पोक स्लोली एंड क्लियरली, मिसेस श्रू ने बड़े तहम्मुल मिजाजी से और आराम से बोला। A flash of anger passed over Anansi's face. अनांसी के चेहरे पे गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। Come on, say them properly. He was finding it difficult to keep a smile on his face. उसके लिए मुश्किल था कि अपने फेस पे एक फेक सी मुस्कुराहट बरकरार रखे, because he was getting really annoyed. पाइस खाने को उसका बहुत दिल कर रहा था, लेकिन वो 5 बोलती तो वो डिसअपियर होती, but she was
also very clever, she was not a fool, इसलिए वो नहीं बोल रही थी 5. अगेन मिसेस शू स्माइल्ड स्वीटली, मिसेस शू तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करती रही, वो बहुत पोलाइट थी, शी वॉज वेरी पोलाइट. और उन्होंने फिर आराम से काउंट किया 1 2 3 4 एंड दिस वन हियर. उन्होंने फिर ये कहा कि 4 और एक जिस पे मैं खड़ी हूँ. She pointed to the mound beneath her feet. Say 1 2 3 4 5, shouted Anansi. Anansi ने चीख के कहा कि बोले 1 2 3 4 5. Instantly, उसी टाइम, in a big burst of sparks, he disappeared. जब उसने खुद अनांसी ने 5 बोल दिया तो वो गायब हो गया. Mrs. Shrew picked up her load and set off the market. Mrs. Shrew ने अपना खाना उठाया और मार्केट चली गई. She would sell these pies and buy mouth-watering. उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगी और मैं इसको बेचूँगी delicacies for her family. और मैं ये मज़े मज़े के खाने वहाँ पे बेच के अच्छा सा अपने घर वालों के लिए कुछ लेके जाऊँगी. About the story, there are a lot of stories about Anansi. Anansi is an African folktale character. Anansi एक African folktale character है. He is also an important character of West African, Caribbean folklore. He often takes the shape of a spider and is considered to be the source of all stories. Now we have these MCQs. The first one is the witch's name was. What was the name? 5, 6, fairy, fantasy. 5 was her name. The witch was dash the big cooking pot, enjoying, staring, playing, serving. Staring. Now just go through these MCQs and try to solve them on your own after reading the whole story. And the next thing we have is this worksheet in which we are going to talk about the questions and answers. The first question is, why was Anansi pleased? Anansi was pleased because he was getting successful in making the people fool. Question number 2, what was the first animal that Anansi tricked? The first animal that Anansi tricked was Mrs. Rabbit. Which animals were not fooled by Anansi? Mrs. Frog and Mrs. Shrew were not fooled by Anansi. इसी तरह से है, what was the witch's name and why didn't she like it? ये आप खुद मुझे बताएंगे. What was the witch doing in her garden? Witch क्या कर रही थी गार्डन में? She was stirring her big cooking pot, muttering and mumbling a spell. ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आपने पढ़ना है, खुद से करना है. What things could you buy from the market? आप अगर मार्केट जाएं तो आप क्या खरीदेंगे? How many characters are there in the story? There are 6 characters. What clues are there in the story which tell us that Anansi was not a nice spider? Anansi was not a nice spider because he fooled others and did not care about his family. Then we have word synonyms: charming, very pleasant, glum, sad, scowl, an angry expression, trickster, a mischievous character, furious, angry. Then we have these word sentences: carried, forward, laugh, stomach, charming. आपने इनके sentences बनाने हैं खुद से and try to be very creative into it. Alright, so we have read this story which was a quite interesting one. So now while going through your reading portion, you have to highlight the nouns, you have to highlight the adjectives, you have to highlight the verbs, and apart from this, for your reading comprehension, try to go through the whole story and try to solve the questions on your own. Apart from this, about the synonyms, you can Google them, you can use dictionaries, preferably I would really recommend you to use some good dictionaries which are authentic, and just go through it. You will love it. Thank you.